سورت مریم اور اس کی آیت نمبر ہے 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیٰ قال رب انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا قال کذالک قال ربک هو علی ہین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا قال رب اجعل لی آیہ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ گزشتہ درس میں میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ سورت مریم سورت کہف کے لیے بمنزلہ تتمہ کے ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جن شبہات کے جواب سورت کہف میں نہیں دیے گئے، اب ان شبہات کے جواب بھی سورت مریم میں اللہ دیں گے۔ نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود اور الہ مانا۔ ان کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا انہیں الہ مانا۔ آل عمران کو انہوں نے پوجا۔ حضرت زکریا ان کے بارے میں ان کا نظریہ یہ قائم ہوا کہ انہیں کچھ اختیار حاصل ہیں، تو اللہ نے سورت مریم میں سب سے پہلے اسی شبے کو دور فرمائے، جس کا
خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ حضرت زکریا خود ہمارے سامنے عاجزیاں کر رہے ہیں، زاری کر رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، اولاد کے لیے ہم سے التجائیں کر رہے ہیں۔ ہم نے خوشخبری دی تو ان کی بے بسی دیکھو کہ انہوں نے جواب میں کیا کہا، تو جو اتنا مجبور ہو وہ الہ بننے کے لائق نہیں ہے۔ یہ جو اللہ قرآن میں واقعات بیان کرتے ہیں، اسے من حیث الواقعہ بیان نہیں کرتے۔ بھئی اللہ ہمیں ایک قصہ سنانا چاہتے، ایک واقعہ اللہ ہمیں سنانا چاہتے ہیں جس میں سبق ہی کوئی نہ ہو۔ دلچسپی کے لیے اللہ ہمیں یہ واقعات سنا رہے ہیں۔ اللہ غیر اللہ کی الوہیت کی نفی کرنا چاہتے ہیں۔ انبیاء ہوں یا اولیاء ہوں، وہ الہ اور معبود بننے کے لائق نہیں ہیں۔ تو ان کا واقعہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی بے بسی دیکھو، لاچارگی دیکھو، مجبوری دیکھو۔ تو ہم نے پچھلے درس میں یہ سب پڑھ لیا کہ حضرت زکریا نے 120 سال کی عمر میں اللہ سے بیٹے کی التجا کی کہ یا اللہ ایک بیٹا طیب ذریت مولا مجھے عطا کر دے۔ ایک تو سبق یہ ملا کہ بیٹے بیٹیوں کا خزانہ یہ انبیاء کے اختیار میں نہیں، اللہ کے اختیار میں ہے، اور انبیاء بھی اس کے لیے اسی کے سامنے التجائیں کرتے ہیں۔ جیسے حضرت زکریا نے التجا کی، اپنی بے بسی کا ذکر کیا، انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، آگے فرمایا وکانت امراتی عاقرا، بیوی میری بانج ہے، ہڈیاں میری کمزور ہیں، سر کے بال سفید ہو گئے، مجھ میں قوت بھی کوئی نہیں، طاقت بھی کوئی نہیں، ہمت بھی کوئی نہیں، بیوی بچہ جننے کے لائق نہیں، لیکن مولا میں تجھ سے مانگ کے کبھی محروم بھی نہیں رہا، تیرے دروازے پہ ہوں، تو مجھے ایک بیٹا دے دے۔ اللہ نے جواب میں کیا فرمایا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، آپ نے صرف بیٹا مانگا، اپنے دامن کے مطابق مانگا، اپنے ظرف کے مطابق مانگا، اور میں نے عطا کرنا ہے اپنی رحمت کے مطابق۔ بیٹا بھی دوں گا، آسمانوں سے خود نام رکھ کے دوں گا، اسمہ یحییٰ، اس بیٹے کا نام کیا ہوگا؟ یحییٰ۔ دیکھیں ہمارا کوئی بزرگ، والد صاحب، چچا، دادا، نانا کسی بچے کا نام تجویز کرتے ہیں تو ہم خوشی سے اس کو قبول کر لیں کہ والد نے تجویز کر دیا ہے، دادا نے تجویز کر دیا ہے، ماں نے تجویز کر دی۔ کیسا بیٹا ہے جس کا نام عرش پہ رب تجویز کر رہا ہے کہ میں اس کا نام رکھ رہا ہوں یحییٰ، لم نجعل لہ من قبل سمیہ،
समीयन के दो माने, हम नाम और दूसरा माना है हम सिफ्त। इस नाम का बच्चा पहले कभी नहीं आया, यहया नाम का कोई आदमी पहले नहीं आया, एक माना ये है। दूसरा माना ये है कि जिन औसाफ से और जिन खूबियों से मैंने इसको माला माल किया है, ऐसी खूबियों वाला भी इससे पहले नहीं आए। तो मैं ऐसा बेटा जिसका नाम भी रख के दे रहा हूं और उसके औसाफ का जिक्र भी कर रहा हूं। ताज्जुब होता है कि अक्सर लोग पढ़े लिखे इस करीम रब को छोड़ के, जो मांगे से ज्यादा देता है और नामुमकिन को मुमकिन बना देता है, नेस्त को हस्त कर देता है, नाबूद को बूद कर देता है, और बांझ बीवी से यहया जैसा बेटा, फिर उसका नाम रख के, फिर उसके सर पे नबूवत का ताज। अल्लाह लोग ऐसे दाता को छोड़ के उनको पुकारते फिरते हैं जो करवट तब्दील नहीं कर सकते, अपने कफन की हिफाजत नहीं कर सकते, चेहरे से मक्खी नहीं उड़ा सकते, किसी चीज को पकड़ नहीं सकते, सोच नहीं सकते, चख नहीं सकते, देख नहीं सकते और सुन नहीं सकते। कैसा ताज्जुब की बात है, लोगों के अकल पे ताज्जुब होता है। रब को छोड़ के औरों के दरवाजे पे जाना, रब को छोड़ के औरों से मांगना, जो इतना करीम रब है। अब रब की कुदरत देखिए, रब के इख्तियार देखिए, उसका तसर्रुफ देखिए, उसकी ताकतें देखिए। वो कहता है मैं बेटा दूंगा, नाम भी रख के दूंगा। ये उसकी कुव्वत है, ताकत है, तसर्रुफ है, इख्तियार है। इस खुशखबरी को सुन के जरा हजरत जकरिया की मजबूरी देखिए, आजिज़ी देखिए, लाचारी देखिए। काला, हजरत जकरिया जवाब में कहते हैं रब्बे अन्ना यकून ली गुलाम, मेरे यहां बेटा कैसे होगा। उसका तसर्रुफ देखिए, वो कहता है दूंगा, ये कहते हैं कैसे। ताज्जुब करते हैं मौला ये बेटा कैसे होगा। वकान तिमराती आकिरन, हालत ये है कि मेरी बीवी बांझ है। वक़द बलग तो मिनल किबरे इतियन, और मैं खुद बुढ़ापे की इंतहा को पहुंच गया हूं। 120 साल उम्र है, हड्डियां रुई की तरह हो गई हैं, बीवी मेरी बांझ है, तो मौला बेटा कैसे होगा। काला कज़ालिक, अल्लाह ने फरमाया इसी तरह होगा। ये आम मुफस्सरीन कज़ालिक का जो काफ है इसको तशबीह का बनाते, तशबीह, इसी तरह होगा। किससे तशबीह दी। वक़द खलक़तो का मिन कब्लो वलम तको शय्यन, इससे पहले तुझे भी तो बनाया था, तू भी तो कोई चीज नहीं था, तेरा कोई वजूद था जमीन पर, तो तुझे नहीं बना लिया, तो तुझे बना लिया है, इसी तरह तेरा बेटा भी बनाएंगे। ये काफ तशबीह का हो गया, यानी अल्लाह तशबीह दे रहे हैं जिस तरह तुझे बनाया इसी तरह याह्या को भी बनाएंगे। इसमें ताज्जुब की कौन सी बात है। हमारे जो शेख हैं रईसुल मुफस्सिरीन कुदवतुस सालिकीन हजरत मौलाना हुसैन अली अलवानी रहमतुल्लाह अलैह, वो इसे काफ तशबीह का नहीं बनाते,
वो इसे काफ ले बयानिल कमाल बनाते हैं। तो उसका माना करते हैं यूं ही। हजरत शाह अब्दुल कादिर मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने कई जगहों पे ये माना किया भी है, यूं ही काफ ले बयानिल कमाल। तो यूं ही का माना क्या होगा? काला कजालिक। अब काफ क्या है? तशबीह का नहीं है, काफ ले बयानिल कमाल है। माना मैं करूंगा, आप हजरात ने तो कई दफ़ा मुझसे पहले ये माना सुना होगा, लेकिन ये फेसबुक पे हमारे अपने जमाती अहबाब भी सुन रहे होंगे और कुछ दूसरे हजरात भी सुन रहे होंगे, कुछ उलमा भी सुन रहे होंगे। जो दूसरे उलमा सुन रहे हैं, दूसरे हमारे भाई दोस्त, वो ज़रा मौलाना हुसैन अली रहमतुल्लाह अलैह के माने पर ज़रा गौर करें। अल्लाह ने उन्हें कैसा कमाल अता किया है। काफ ले बयानिल कमाल का मतलब ये है काला कजालिक। हजरत ज़करिया ताज्जुब करते हैं, मेरी उम्र 120 साल है, हड्डियां मेरी कमज़ोर हो गई, सर के बाल सफ़ेद हो गए, बीवी मेरी बांझ है, मैं खुद बुढ़ापे की इंतहा को पहुंच गया हूं, बेटा कैसे होगा? अल्लाह कहते हैं तेरी उम्र 120 साल हो, तेरी बीवी बांझ हो, हड्डियों की रस खत्म हो गई हो, सर के बाल सफ़ेद हो गए हो, तू बुढ़ापे की इंतहा को पहुंच गया हो, फिर मैं तुझे बेटा दूं। यही तो मेरा कमाल है, यही तो मेरा कमाल है, यही तो हमारा कमाल है कि इस मौके पर हम तुझे बेटा अता करें। इसको जरा यहीं रहने देते हैं, जरा हम आगे थोड़ा सा चलते हैं, थोड़ा सा नीचे आ जाइए। ये दूसरा रुकू है, आयत नंबर 16 है। इसमें अल्लाह दूसरे शुबे का जवाब दे रहे हैं। दूसरा शुबा सैयदा मरियम सलामुल्लाह अलैहा के मुतालिक है। आज भी नसारा उन्हें इला मानते हैं, उन्हें माबूद मानते हैं, उनकी इबादत करते हैं, उनके नाम की नजर नियाज देते हैं, उनके चढ़ावे चढ़ाते हैं, उनकी पुकारें करते हैं, उन्हें इला मानते हैं। धोखा कहां से लगा? बेमौसमे फल लाए, उनके यहां बेमौसमे फल लाए, बगैर खामद के बेटा हो गया। तो वो बड़ी पहुंची हुई हैं। ये जितने मुशरिकीन को अकीदे के मामले में धोखा लगा है ना, इन्हें लगा ही मोजज़ों और करामतों से है। ये ज़हन में रखें। उन्होंने मोजज़े देखे ना, उससे उन्होंने समझ लिया कि बड़े बाइख्तियार हैं। करामत देखी ना, उससे उन्होंने महसूस कर लिया कि ये तो मुतसर्रिफ हैं, ये जब चाहे मिट्टी के परिंदे बना के सचमुच के परिंदे बना दे, ये जब चाहे मुर्दों को जिंदा कर दें, जब चाहे नाबीनों को बीना कर दें, जब चाहे तो 10 बंदों का जो खाना है वो 200 बंदों पे पूरा कर दें। ये जब चाहे एक मशकीज़ा पानी हो, उसके आगे हाथ रख दें तो पूरा लश्कर उस पानी को पी जाए। तो ये मोइज़े होते हैं या गैर नबी की करामत होती है। यहां से धोखा लगा है। आप जितने उलमा को सुनेंगे, अगर उस तबके का कोई आलिम और कोई खतीब मेरी बात को सुन रहा है, या उस तबके का कोई आम आदमी मेरी बात को सुन रहा है, वो मेरी गवाही देगा इंशाअल्लाह। जब भी अंबिया का तसर्रुफ और इख्तियार साबित करना होता है तो उनके मोजज़ों को दलील बनाया जाता है, उनके मोइज़े लोगों को सुनाए जाते, ये मोइज़ा, ये मोइज़ा, ये मोइज़ा। इससे अंबिया का इख्तियार, अंबिया का मुख्तार कुल होना, उनका मुतसर्रिफ होना, वो जो चाहें जिसको दें अता करें, इससे हमेशा उन्होंने अवाम को गुमराह करने की कोशिश की है। पता नहीं उन उलमा को मैं नीयत पे भी शक नहीं कर सकता, कोई सख्त जुमला भी नहीं बोलना चाहता, उन्हें क्या इस बात का इल्म नहीं है कि हमारे अकायद की किताबें, उनमें यह लिखा हुआ है
کہ معجزے کا فاعل نبی نہیں ہوتا، معجزے کا فاعل کون ہوتا ہے؟ اللہ۔ وہ نہیں پڑھتے کتابوں میں، شرح عقائد میں نہیں پڑھتے، خیالی میں نہیں پڑھتے، شرح مواقف میں نہیں پڑھتے ہیں وہ کہ معجزے کا فاعل کون ہے؟ اللہ۔ نبی معجزے کا، نبی کے اپنے اختیار میں ہے معجزہ، اس کے کنٹرول میں ہے، اس کے تصرف میں ہے، جب چاہے جہاں چاہے وہ معجزہ دکھا دے، اپنی مرضی سے وہ معجزہ دکھاتا ہے، اپنی مرضی سے لوگوں کے سامنے معجزہ پیش کرتا ہے۔ اگر اپنے اختیار اور مرضی سے ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو سانپ بنتے ہوئے دیکھ کر کبھی نہ بھاگتے۔ کیوں بھاگنے لگے تھے؟ ان کی مرضی سے تو بنا تھا۔ سب سے بڑی دلیل یہ ہے، میں سنجیدہ طبقے کو پھر کہوں گا کہ میری بات کو حوصلے سے سنیں، غصہ تھوک دیں، حوصلے سے سنیں۔ یہ قرآن میرے نبی کا معجزہ ہے، کون انکار کرتا ہے؟ تو یہ نبی پاک کا کلام ہے، یہ نبی پاک کے اختیار میں تھا۔ تو پھر تمہیں یہ بات کیوں سمجھ نہیں آ رہی کہ معجزے میں ہاتھ پیغمبر کا ہے اور اختیار کس کا ہے؟ اللہ۔ آپ نے تو ایک مرتبہ انشاءاللہ نہیں کہا تو رب نے 15 دن وہی روک لی تھی۔ تو آپ اپنی مرضی سے قرآن آپ کے اوپر اترتا تھا۔ عیسائیوں کو بھی جو دھوکہ لگا نا، حضرت عیسیٰ کو الہ مانا، تو معجزوں سے لگ، مائی مریم کی اس کرامت سے لگ، پھر یہ کرامت کہ امید سے ہو گئی بغیر خامند کے، اس سے ان کو دھوکہ لگا۔ تو اللہ نے مریم کا واقعہ بیان کیا کہ دیکھو تو صحیح، تم انہیں عالم الغیب مانتے ہو، مختار کل مانتے ہو، متصرف مانتے ہو۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، قرآن میں ذرا مریم کا تذکرہ کیجئے۔ اِذِ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، جب وہ الگ ہو گئی اپنے گھر والوں سے شرقی جانب، فاتخذت من دونہم حجابا، اور ان کی طرف سے آڑ میں چلی گئی، پردہ کر لیا۔ فارسلنا الیہا روحنا، تو ہم نے مریم کی طرف بھیجا اپنی روح کو۔ یہاں روح سے مراد کون ہے؟ جبریل امین۔ روح سے مراد جبریل امین ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح۔ یہاں روح کس کو کہا گیا ہے؟ جبریل امین کو کہا گیا ہے۔ ایک اور جگہ پہ اللہ نے کہا نزل بہ الروح الامین علی قلبک، سورہ شعراء میں۔ اس قرآن کو آپ کے دل پر روح الامین نے اتارا۔ تو یہاں بھی روح سے مراد جبریل ہوگا۔ جبریل انسانی شکل میں، خوبصورت نوجوان کی شکل میں، اس الگ جگہ پہ جہاں مریم غسل کرنے کے لیے الگ ہوئی تھی وہاں پہنچ گیا۔ فتمثل لہا بشرا سویا، اس نے مکمل بشر کی صورت اختیار کر لی۔ یہ ذرا تمثلہ پہ ذرا غور کیجئے گا، تمثلہ، بشر کی شکل اختیار کر لی، بشر کی صورت اختیار کر لی۔ اصلیت اس کی نور تھی، حقیقت اس کی نور تھی، لیکن جب مریم کے سامنے آیا جبریل تو اس نے بشر کی شکل اختیار کر لی۔ یہاں سے کچھ لوگوں کو دھوکہ لگا اور وہ کہنے لگے کہ اگر حقیقت نور ہو، اصلیت نور ہو اور بشری لباس میں آ جائے تو آ سکتا ہے، جبریل نہیں آیا تھا؟ تو اصل میں تو نور تھا، اس کی حقیقت نور ہے، اس کی تخلیق نور سے ہوئی،
اس کی اصلیت نور ہے، لیکن وہ نسانی لباس میں نوجوان کی شکل میں آیا، اسے بشر بھی کہا گیا، لیکن ان لوگوں کی یہ دلیل انتہائی کمزور دلیل، اگر وہ تنہائی میں بیٹھ کے غور کریں تو شاید اس دلیل پہ انہیں خود بھی ہنسی آ جائے۔ یہاں تمثلہ کا لفظ ہے، شکل اختیار کی، تمثلہ کا کیا معنی ہے؟ صورت اختیار کی، بشر کی صورت اختیار کی۔ اور جب میرے نبی کا تذکرہ ہوا تو وہاں تمثلہ نہیں کہا، وہاں کہا انما انا بشرم۔ یہ تمثل ہے، صورت اختیار کرنا، شکل اختیار کرنا۔ اصلیت نور ہے، بشر کی شکل اختیار کر لی، اور جس کی اصلیت بھی بشر تھی، ظاہر بھی بشر تھا، باطن بھی بشر تھا، وہاں تمثلہ کا لفظ نہیں آیا۔ وہاں جہاں بھی لفظ حل کنت الا بشر الرسولا، میں نہیں ہوں مگر بشر رسول ہوں، قل انما انا بشرم مثلکم۔ پھر یہ جبریل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی تو آیا تھا، اس کے ساتھ اور فرشتے بھی تھے، اس وقت بھی انسانی لباس میں آیا، مہمانوں کی شکل میں آیا، باہر بیٹھک میں بیٹھا ہے، وہ اندر گئے ہیں، بچڑا انہوں نے بھونا تلا، تل کے لے آئے ہیں، سامنے رکھا ہے، تو پھر جبریل نے کھایا، ہاتھ بڑھایا کھانے کی طرف۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ابراہیم نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ نہیں بڑھ رہے ہیں تو ابراہیم ڈر گئے، کہیں میرے دشمن نہ ہو۔ جس کی اصلیت نور ہو، جس کی حقیقت نور ہو، وہ اگر انسانی لباس میں بھی آئے پھر بھی وہ کھاتا پیتا نہیں ہے، اور جو کھاتا پیتا ہو اس کی اصلیت نور نہیں ہوتی، اس کی اصلیت بشر ہوا کرتی۔ تو نبی پاک کھاتے بھی ہیں، نبی پاک پیتے بھی ہیں۔ حدیث میں کئی جگہوں پہ کھجوروں کے کھانے کا تذکرہ، گوشت کا کون سا حصہ آپ کو پسند تھا اس کا تذکرہ ہے جی، یہ ساری تذکرے، پانی پینے کا تذکرہ، پھل کھانے کا تذکرہ، شہد پینے کا تذکرہ، حدیث میں کئی جگہوں پہ تذکرہ ہے۔ تو یہاں تمثل آیا، اس کو ذہن میں رکھیے گا، اور وہاں مثلکم آیا۔ قالت، مریم کہنے لگی، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں تجھ سے رحمان کی پناہ میں آتی ہوں اگر ہے تو متقی، اگر تو متقی ہے، تقوی میں ہے، پرہیزگار ہے، تو میں تجھ سے پناہ طلب کرتی ہوں۔ میرے خلوت میں اور غسل والی جگہ میں ایک نوجوان کا یوں آ جانا، میں اپنے رب کی پناہ طلب کرتی ہوں۔ اللہ نے مسئلہ سمجھایا، کہانی نہیں سنائی، قصہ نہیں سنایا، اللہ نے مسئلہ سمجھایا۔ مریم زندہ ہے، سوئی ہوئی بھی نہیں ہے، جاگ رہی ہے، سامنے جبریل کھڑا ہے، وہ انسانی لباس میں آیا ہے، لیکن مریم جبریل کو پہچان نہ سکیں۔ جو اپنے سامنے کھڑے ہوئے جبریل کی حقیقت کو نہیں پہچان سکتی، وہ تمہارے حالات سے کیسے واقف ہو سکتی ہے؟ وہ عالم الغیب کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ متصرف فی الامور کیسے ہو سکتی ہے؟ قال انما انا رسول ربک، جبریل نے کہا ڈریے نہیں، میں تیرے رب کا قاصد ہوں، بھیجا ہوا، میں تیرے رب کا رسول ہوں، بھیجا ہوا ہوں، ایلچی ہوں، قاصد ہوں۔ کیوں آیا ہوں؟ لے آہابا لکے غلامن زکیہ، تاکہ میں دوں تجھے ایک لڑکا زکیین، گناہوں سے پاک، معصوم۔ نبی بننا تھا، حضرت عیسیٰ نے نبی ہونا تھا، اور نبی جو ہے وہ گناہوں سے کیا ہوتا ہے؟ پاک ہوتا ہے۔
नबी के अलावा कोई गलतियों से गुनाहों से पाक नहीं है, महफूज जरूर है, लेकिन आप कहें ना कि वो गलती करते ही नहीं ना। चाहे हजरत सैयदना अबू बकर हो, चाहे हजरत सैयदना फारूक आजम हो, चाहे हजरत सैयदना उस्मान ज़ुन्नुरैन हो, चाहे हजरत सैयदना अली इब्न अबी तालिब हो, चाहे खानवादा अली के अफराद हो, मासूम गुनाहों से नहीं है। गुनाहों से मासूम होना ये सिफ्त अंबिया की है। अंबिया मासूम होते हैं, अंबिया के अलावा गुनाहों से मासूम हो कोई नहीं होता। तो मैं तुझे एक सुथरा पाकीज़ा ज़कियन पाकीज़ा बेटा दूं। तो हमारे जो दोस्त हैं, अहबाब हैं, वो इस आयत से लोगों के अकीदे ख़राब करते फिरते। इस आयत को लय के साथ पढ़ते हैं, कहते हैं देखो ये वहाबी कहते हैं अल्लाह के सिवा बेटा को नहीं दे सकता, और यहां कुरान में है जिब्रील कह रहा है मैं बेटा दूंगा मैं। तो फिर जिब्रील ने दिया ना, तो जिब्रील दे सकता है तो फिर अंबिया भी दे सकते हैं, फिर औलिया भी दे सकते हैं, फिर बुजुर्गान दीन भी दे सकते हैं। ये तो साबित हो गया कि अल्लाह के सिवा औरों को भी बेटा देने का इख्तियार है। अब जब इस आयत का तर्जमा भी मैंने यही किया है, मैंने कोई डंडी नहीं मारी, मैं तुझे एक सुथरा सा बेटा दूं। तो अब अवाम जो लकीर के फ़कीर होते हैं, उन्हें कुरानी उलूम पे उबूर हासिल नहीं होता, वो ये सुनते तो वो कहते हैं हाँ यार कुरान है, जिब्रील कहता है मैं दूंगा मैं, तो ये कैसे कह सकते हैं कि अल्लाह के सिवा और को नहीं दे सकता। इसके दो जवाब हैं। एक जवाब तो इल्ज़ामी है। इल्ज़ामी जवाब ये है कि आप एक आदमी को अपनी दुकान से भेजते हैं दूसरे ताजिर के पास, अपने सेल्समैन को कासिद बना के जा, और उस ताजिर को मेरा ये पैगाम जाके पहुंचा। वो जब सेल्समैन और आपका कासिद उस ताजिर के पास जाएगा तो आपकी बात करेगा या अपनी करेगा? भेजने वाले की करेगा कि वहां जाकर उसने अपनी शुरू कर देनी है। वो तो कासिद है, उसका काम सिर्फ इतना है कि जिसने भेजा है उसकी बात आगे पहुंचा दे। तो जिब्रील को भेजा किसने था? तो बात उसने अपनी करनी थी। भेजना अल्लाह ने भेजा, अल्लाह ने कासिद अल्लाह ने बनाया, तो फिर बात भी अल्लाह की करनी थी ना। ये जो बात मैंने की है, कोई बंदा कहे कि ये आपने कहां से कर ली, मैंने कहा कुरान अपनी तफसीर खुद करता है, सिर्फ एक आयत पे न रहो, दूसरी आयतें देखो। आओ जरा मैं आपको दिखाता हूं कि हमने ये माना कहां से किया है। सफा नंबर है 71। सत्तर पे आ जाएं, थोड़ा सा पीछे पढ़ लेंगे तो और बात जरा साबित होगी। 70 उसकी आखिरी सतर है और आयत नंबर है 44 जी, 44 जी। सूरत आले इमरान है जी। जिन जिन लोगों, जो लोग घरों में हमारी माएँ बहनें बेटियां सुन रही हैं वो कुरान खोलें जी। सूरत आले इमरान आयत नंबर 44। पीछे मरियम का जिक्र है, ज़करिया का जिक्र है, हज़रत ज़करिया का बेटा मांगना, मेहराब में खड़े होकर नमाज पढ़ना, या की बशारत मिलना, ये पीछे सारा जिक्र है। फिर आगे मरियम को खिताब, ये करके अल्लाह क्या कहते हैं? ज़ालिका मिन अंबाइल गैब, ये कुछ खबरें हैं गैब की।
ये जो हमने आपको सुनाई है ना कि किस तरह कुरानदाजी हुई और मरियम ज़करिया की कफालत में आ गई कुरानदाजी में, और किस तरह मरियम की माँ ने मन्नत मानी और किस तरह ज़करिया ने दुआएं की, ये जो बातें हमने आपको सुनाई हैं ना, ये कुछ खबरें हैं गैब की। नूही है इलैका, हम इनको वही करते हैं आपकी तरफ। वमा कुंता लदैहिम इज युल्कून अकलामहुम, आप तो उनके पास मौजूद नहीं थे जब वो अपनी अपनी कलमे डाल रहे थे। किस मकसद के लिए? अय्युहुम यकफुलु मरियम, कि उनमें से कौन मरियम की परवरिश करे। हर खादिम कहता था ये बच्ची मेरी परवरिश में दी जाए, ज़करिया कहते थे मेरी परवरिश में दी जाए। कहा गया नहर में कलमे डालो अपनी अपनी, जिसकी कलम रुक गई मरियम उसकी कफालत में, या जिसकी कलम उल्टी चल पड़ी, जिसका कलम उल्ट उसकी कफालत। ज़करिया का कलम रुक गया। अल्लाह कहते हैं जब वो कलमे डाल रहे थे आप तो उनके पास मौजूद नहीं थे। वमा कुंता लदैहिम इज़ यख्तसिमून, और जब वो मरियम की कफालत के बारे में झगड़ रहे थे ना, उस वक्त भी आप उनके पास मौजूद नहीं थे। जो लोग नबी पाक को हर जगह हाजिर नाजिर मानते हैं वो इस आयत पे गौर करें। अल्लाह कहते हैं जब वो कलमे डाल रहे थे आप मौजूद नहीं थे, जब वो झगड़ रहे थे आप मौजूद हो नहीं थे वहां। ये हमने आपको बातें बताई हैं, ये गैब की कुछ खबरें हैं, हम आपको इत्तला देते हैं। अब आइए जी, फरिश्ता कैसे खुशखबरी दे रहा है सुनिए। इस कालतिल मलाइका, तो जब फरिश्तों ने कहा इन्नल्लाह युबश्शिरो के, ए मरियम अल्लाह तुझे खुशखबरी देता है, बेकालिमतिन, अपनी तरफ से एक कलमे की, इस्मुहु अल मसीहो ईसा इब्नु मरियम, जिसका नाम मसीह ईसा बेटा मरियम का होगा। अब यहां फरिश्तों ने जब खुशखबरी दी तो क्या कहा? हम देंगे। यहां फरिश्ते ये कह रहे, जिब्रील ये कह रहा है हम देंगे, मैं दूंगा। नहीं, इन्नल्लाह युबश्शिरो के, बेशक अल्लाह तुझे इसकी क्या देता है? खुशखबरी। तो जरा इस आयत को भी तो सामने रखो। सिर्फ आपने एक आयत को देखा और तहकीकी जवाब जो है वो इसी आयत के अंदर आगे आ रहा है। अगली आयत में जिब्रील ने कहा मैं आया हूं ताकि मैं तुझे एक सुथरा सा बेटा दूं। कालत, मरियम कहने लगी अन्ना यकूनु ली गुलाम, मेरे यहां बेटा कैसे होगा? वलम यमससनी बशरुन, किसी बशर ने मुझे छुआ नहीं। वलम मको बगियन, और बागिया तागिया बदकार मैं नहीं। शादी मेरी नहीं हुई कि बेटा हलाली हो। बागिया तागिया जानिया मैं नहीं। किसी इंसान ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया। और रब का अपना कानून है कि जब तक नर मादे का जोड़ा इम्तिजाज न करे औलाद पैदा नहीं होती। खुद रब ने कानून बनाया, नर मादे का जोड़ा मिलेगा फिर औलाद पैदा होगी। तो यहां मेरा खामद कोई नहीं, मुझे किसी मर्द ने हाथ नहीं लगाया, तो मेरे यहां बेटा कैसे होगा? काला कजालिक, वही बात आ गई, काला कजालिक। फरिश्ते ने कहा यूं ही, यही मैना किया ना जी इन्होंने भी, यूं ही वाला मैना कर गया ना ये भी, इसी तरह मैना नहीं किया इन्होंने। अब अगर उस काफ को तशबीह के लिए अब यहां बनाए तो फिर
देखना पड़ेगा कि किसके साथ तशबीह दी जा रही है। तो हम कहेंगे तशबीह इसके साथ दी जा रही है, अल्लाह मरियम को कह रहे हैं तुझे नहीं बनाया, तेरा भी तो दुनिया में नाम निशान नहीं था, तो तुझे बना लिया, इसी तरह तेरा बेटा बना लेंगे। ये तो मौलाना हुसैन अली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं यहां काफ तशबीह के बनाने की जरूरत क्या है कि आप जिसके साथ तशबीह दे रहे हैं उसका जिक्र कोई ना हो, तो इसको बनाइए काफ ले बयानिल कमाल, जिसका माना किया यूं ही कि तेरी शादी ना हुई हो, तुझे किसी मर्द ने हाथ न लगाया हो, फिर मैं तेरी झोली को हरा कर दूं, यही तो मेरा कमाल है। काला कजालिक, फरिश्ते ने क्या कहा? इसी तरह यूं ही मरियम क्या कहती थी? अन्ना, कैसे, क्यों कर, बेटा कैसे होगा, मुझे तो हाथ किसी ने नहीं लगाया। देना होता जिब्रील ने, तो जिब्रील कहता ऐसे होगा। वो जो पूछती थी कैसे होगा तो बताता ना, जिब्रील ने जो देना था तो बताता, मरियम ऐसे होगा, ऐसे होगा, वो कहती है कैसे होगा, जिब्रील कहता है मैं नहीं पता, काला रब्बों के। तो इस आयत को भी तो जरा पढ़िएगा जनाब, सिर्फ वलम अको ले आबा लके गुलामन जकिया पे आप रोक गए। जिब्रील आगे सब कुछ किसके सुपुर्द कर रहा है? काला रब्बों के। मरियम मुझे पता नहीं कि कैसे होगा, तेरा रब कहता है हुआ अलैया हय्यनुन, इस तरह भी देना मेरे लिए आसान है, इस तरह भी देना मेरे लिए। नर मादे का जोड़ा मिल जाए तो तू भी आसान समझ रही है, हालांकि वो कतरा ही तो है, वो मिल जाए तो तू आसान समझ रही है, नर मादे का जोड़ा न मिले तो तू मुश्किल समझ रही है। ये मुश्किल और आसान तेरे लिए है, मेरे लिए दोनों तरफें बराबर। काला रब्बो के हुआ अलैया हय्यनुन वले नजअलहु आयतल लिन्नास, और हम तो इसको बनाना चाहते हैं लोगों के लिए निशानी, व रहमतम मिन्ना, अपनी तरफ से रहमत, अपनी तरफ से मेहरबानी, इस तरह पैदा करके लोगों को अपनी तरफ से निशानी और रहमत दिखाना चाहते हैं। गालबन अल्लाह कहना ये चाहते हैं वले नजअलहु आयतल लिन्नास, कहना ये चाहते हैं कि मैं इस तरह तुझे बेटा देकर बगैर खामद के मैं दुनिया वालों को बताना चाहता हूं कि अगर दुनिया के कानून खत्म हो जाएं, ज़ाब्ते टूट जाएं, उसूल खत्म हो जाएं, कायदे खत्म हो जाएं, सारे रास्ते बंद हो जाएं, डॉक्टरों का बोर्ड ये फैसला कर दे ये मरीज मौत के पंजे से नहीं बच सकता, और डॉक्टरों का बोर्ड ये फैसला कर दे इस औरत की कोख से बच्चा जन्म नहीं ले सकता, और वकीलों का बोर्ड ये फैसला कर दे ये बंदा फांसी के फंदे से नहीं बच सकता, दुनिया के कानून और ज़ाब्ते खत्म हो जाएं, तो लोग फिर भी मेरी रहमत से नाउमीद ना हो, मैं कभी कभी कानून तोड़ के कुदरतों के मुजाहरे भी शुरू कर दिया करूं। हम इसको बनाना चाहते हैं निशानी लोगों के लिए, तो जहां वो कजालिक का यहां भी वही कजालिक का, इसलिए मैंने इसको भी उसके साथ जिक्र कर दिया। अगला जो हजरत माई मरियम सैयदा का वाक़या है वो इंशाअल्लाह आइंदा जुमा उसको जिक्र करेंगे, पहले इसको मुकम्मल कर लेते। हजरत ज़करिया क्या कह रहे हैं जी? मौला ये बेटा कैसे होगा, बीवी मेरी बांझ है, मैं बुढ़ापे की इंतहा को पहुंच गया हूं। अल्लाह ने फरमाया यूं ही तेरा रब कहता है हुआ अलैया हय्यनुन, इस तरह भी देना मुझ पर आसान है। वक़द खलक़तो का मिन कबलो, मैंने तुझे भी तो इससे पहले बनाया है, वलम तको शय्यन, तू भी तो कुछ नहीं था, तेरा भी तो वजूद को नहीं था, तो तुझे नहीं बना लिया।
एक मिनट के लिए तवज्जो कीजिए। भाई एक बूढ़ा है, उसकी 120 साल उम्र है, हड्डियाँ उसकी कमज़ोर हो गई हैं, रस ख़त्म हो गई है, सर के बाल सफ़ेद हो गए हैं, बीवी उसकी बांझ है, ऊपर से वो 99 साल की है। उस 120 साल के बूढ़े को इतने वसूख के साथ जब अल्लाह ये इत्तला दे रहे हैं, खुशखबरी कि तुझे बेटा देंगे, उसकी खुशी की इंतहा क्या हुई? अल्लाह, हजरत ज़करिया की मसरत की इंतहा क्या हुई? अल्लाह जब कहते हैं कि तुझे बेटा देंगे, तू भी तो इससे पहले कुछ नहीं था। काला, तो हजरत ज़करिया कहते हैं रब्बी जअल्ली आया, मेरे मौला मेरे लिए कोई निशानी तो मुकर्रर कर। जब बीवी हामला हो जाए, जब बीवी उम्मीद से हो जाए या वज़ा हमल होने लगे, बच्चा पैदा होने के करीब हो, तो मौला कोई निशानी तो बता। कौन पूछ रहा है? हज़रत ज़करिया। अल्लाह उनकी आजिज़ी का जिक्र कर रहे हैं, उनकी मजबूरियों का जिक्र कर रहे हैं, उनकी इंकिसारियों का जिक्र कर रहे हैं। बीवी घर में करीब है, हर वक्त का साथ है, और पूछ रहे हैं रब से, मौला जब या आने वाला होगा तो मैंने कोई निशानी तो दस। अल्लाह ने लोगों को समझाया, ओए लोगों, जिससे अपने बेटे की पैदाइश के वक्त का भी इल्म न हो, वो आलिमुल गैब कैसे हो सकता है? हर चीज को जानने वाला कैसे हो सकता है? वो गैब का आलिम कैसे हो सकता है? उसे तो ये भी पता नहीं कि मेरी बीवी उम्मीद से हो गई है और किस वक्त वज़ा हमल होना है। उसकी निशानी पूछ रहे हैं, मौला कोई निशानी बता। अल्लाह ने भी फिर बड़ी निशानी बताई। खुदा दी कसम, अल्लाह भी हद्दा मुका छड़ी। अल्लाह ने भी समझाने की हद कर दी। लोगों को समझ ना आए तो फिर लोगों की अपनी किस्मत है, वरना कुरान हर मर्ज का इलाज, हर मर्ज का इलाज, शिर्क का तो बहुत जबरदस्त इलाज। काला, अल्लाह ने कहा आयतों का, अल्लाह तुकल्लिमन नास सलासा लयालिन सवियन, आप बिल्कुल तंदुरुस्त होंगे। सवियन का मैना यानी सेहतमंद होंगे। तंदुरुस्त और सेहतमंद होने के बावजूद आप 3 दिन और 3 रातें जब कलाम ना कर सकें, दुनिया की जबान आपकी बंद हो जाए, तो बस समझना कि अब यह आने वाला है। आप जिक्र करेंगे, तस्बीह पढ़ेंगे, तामीद पढ़ेंगे, तकबीर करेंगे, तालील करेंगे, जिक्र व अज़कार के लिए आपकी ज़बान खुलेगी, लेकिन दुनियावी कलाम वो आप इस ज़बान से नहीं कर सकेंगे। आपकी ज़बान बंद हो जाएगी। जब ज़बान बंद हो जाए ना, तो फिर समझना कि बेटा 3 दिनों में आने वाला है। अल्लाह ने मसला समझाया। ओए लोगों, जिनकी अपनी ज़बान अपने इख्तियार में ना हो, जिनकी अपनी ज़बान अपने तसर्रुफ में ना हो, मैं चाहूं तो बोलने दूं, मैं चाहूं तो बोलने भी ना दूं, वो इलाह बनने के लायक नहीं है, वो तसर्रुफ के लायक नहीं है, मुतसर्रिफ नहीं है, मुख्तार नहीं है। उनकी तो अपनी जबान भी उनके इख्तियार में नहीं। कितने कितने लोग हुए, आपने भी देखा, हमने भी देखा, फालज का अटैक हो गया, जबान बंद हो गई, बोलने से आजिज आ, और लिख के देते हैं, फिर हाथ काम नहीं करते। फिर जब वो बोलना चाहते हैं तो कलेमात की जगह आंखों से आंसू बहते हैं, बोल नहीं ना सकते। बेटा खड़ा है, बीवी खड़ी है, बेटी खड़ी है,
पोते हैं, दोते हैं, लेकिन उसे कोई बात नहीं कर सकते। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह 8-8 घंटे लगातार तकरीर किया करते, लगातार 8-8 घंटे। उस वक्त ये साउंड सिस्टम और स्पीकर वगैरह भी नहीं। अब तो साउंड ना हो ना तो कई मुकर्रीन दे पोल खुल जान, कई मुकर्रीन के पोल खुल जाए, खुदा की कसम, कई नाथखानों के पोल खुल जाए। अब ये इधर से पढ़ रहे होते हैं, उधर से वालियम वाले को कहते हैं, स्पीकर वाले को कहते हैं और खोल और खोल, उससे लड़ते हैं। तो न ये स्पीकर होते थे, न ये साउंड होते थे, और बगैर स्पीकर के तकरीर। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह सुनाया करते थे कि गुंजियाल में हज़रत शाह जी तशरीफ़ लाए, जलसा हुआ तो 7-8 हज़ार के करीब आदमी हो 7-8 हज़ार के करीब आदमी हो। मैंने स्टेज के करीब खड़े होकर तकरीर सुनी, फिर बिल्कुल मजमे के आखिर में चला गया, दोनों जगहों पे बराबर आवाज आ रही, इतनी आवाज। जिंदगी के आखिरी लम्हात में फालिज हो। अल्लाह ने फिर बताया कि यह ताकत तुम्हारी नहीं थी, ये हमने कुव्वत दी थी, ये हमने ताकत दी थी। शाह जी के जो कवाए थे ना, आज़ा पट्ठे, तो किसी डॉक्टर ने उन्हें चेक किया बीमारी के आलम में, तो उसने कहा शाह जी उम्र ते तो अल्लाह 200 साल दी दिती सी, तुसा 60 साल जी पूरी कर ली। अब 8 घंटे जो आदमी तकरीर करता हो और फिर लगातार सफ़र करता हो और फिर जेलें काटता हो तो क्या कर सकता है। तो ये ज़बान, जितने बाकी हमारे आज़ा हैं, इन सब का हकीकी मालिक जो है अल्लाह है। उसका शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें ये आज़ाद दिए, देखने की ताकत, चलने की ताकत, पकड़ने की ताकत, सोचने की ताकत। तो फिर हमें ये आज़ा अल्लाह के रास्ते में खर्च भी करने चाहिए। किसी गरीब की मदद करनी चाहिए, किसी फ़कीर की मदद करनी चाहिए, किसी भूखे की मदद करनी चाहिए। कोई माजूर आदमी है, चल नहीं सकता, तो उसका हाथ पकड़ के उसे घर तक, एक जवान आदमी है, कुव्वत है, ताकत है, एक गरीब आदमी है, बूढ़ा आदमी है, चलने से आजिज आ गया है, तो वो पकड़ के उसे सड़क पार करवा देता है। यारो, कुत्ते पे तरस खाया था उसने, कुत्ते पे, कि वो कुएं के मुंडेर पे बैठ के हाँप रहा था और पानी के लिए। तो वो एक बदकार सी औरत थी बनी इसराइल की, मेरे प्यारे आका ने जिक्र किया, तो उसने अपनी जूती उतारी, दुपट्टे से बांधी, कुएं में लटकाई, जूती के ज़रिए पानी निकाल के कुत्ते को पिलाया। अल्लाह ने उसे इसीलिए माफ़ कर दिया कि कुत्ते पे रहम खाया। तो अगर एक बूढ़ा आदमी है, सड़क पार कर रहा है, आप उसकी मदद करते हैं, हो सकता है वो आपको दुआ दे और अल्लाह इसी अमल के बदले में आपको माफ़ कर दे। तो जो नौजवान हैं, ये इसका ख्याल किया करें। मैंने कई मर्तबा देखा, मैं भी कारों पे सफ़र करता रहता हूँ, कि भीड़ है, आगे से पैदल गुज़र रहे हैं, कई ऐसे ड्राइवर हैं कार में बैठे हुए हैं, आगे से कोई औरतें गुज़र रही हैं, वो गुज़रने नहीं देती। पहले ऐसा लगना, वो औरतें हैं, बूढ़े लोग हैं, आहिस्ता चलने वाले लोग हैं, आप कार रोक लें और उन्हें गुज़रने का मौका दें। तो ये जो आज़ा अल्लाह ने हमें दिए हैं, ज़बान है, आँख है, पाँव हैं, हाथ हैं, दौलत है, माल है, ये गरीबों पर, मिस्कीनों पर, फ़कीरों पर, मोहताजों पर, आजिज़ बंदों पर, माजूर लोगों पर ये खर्च करना चाहिए, खर्च करना चाहिए। कभी कभी अस्पतालों का चक्कर भी लगाना चाहिए और वहाँ महसूस करना चाहिए कितने लोग वहाँ हैं जिनकी माएँ या जिनके वालिद या जिनके बेटे वहाँ दाखिल हैं
اور ان کے لیے دوائی کے پیسے ان کے پاس نہیں. یہ ہے اصل صدقہ. کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ آپ وہاں ان کی مدد کر دیں. تو اعضاء ہوں یا دولت ہو یا مال ہو، اسے اللہ کے رستے میں خرچ کرنا چاہیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ہمارے بھائی ساتھی ہیں محمد عبداللہ صاحب، ان کا آج بائی پاس آپریشن تھا لاہور میں. اور ہمارے دوسرے ایک ساتھی ہیں اشتیاق صاحب، ان کو بھی ہارٹ کی تکلیف ہوئی. ان کے لیے خصوصی دعا کرو جی، اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اجمعین آمین. ہاں جی، ہاں امجد صاحب کے بھائی کو اللہ نے جڑواں بیٹے دی. ان میں سے ایک فوت ہو گیا، ایک بیمار ہے اسپتال میں. جو فوت ہو گیا اللہ والدین کے لیے ذخیرہ آخرت بنا، اور جو بیمار ہے اللہ اسے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اجمعین آمین.